تختوں سے ان تاجوں سے، اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے ان تاجوں سے، جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں، اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں۔ سے وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں، اور مجرم پلتے رہتے ہیں، ان چوروں کے سرداروں سے، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دوستوں کو آج کی بیٹھک میں خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹھک کا ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ لاہور میں پیدا ہوئے، آپ نے لاہور میں ہی بنیادی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد گریجویشن جو ہے آپ نے لاہور میں کی، پھر جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب میں آپ نے جرنلزم میں ڈاکٹریٹ کی یا ڈگری حاصل کی، اور پھر ڈاکٹریٹ آف فلسفی کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی ہے میرے آج کے مہمان نے۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے ان کا تعلیم کا، جو کیریئر ہے۔ اگر میں اس کو ڈیٹیل میں لے کے جاؤں تو میرے لیے شاید ممکن نہ ہو سکے میرے پروگرام، لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سفارت کے میدان سے ہے، اور وہ جو ہے گنی بساؤ کا ایک ملک ہے، اس کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں، ڈپلومیٹکلی ان کو مشورہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کے پروٹوفولیو ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں جناب ایمبیسیڈر امین خان صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اٹس ایبسولوٹلی پلیجر ٹو ہیو یو ڈاکٹر صاحب ٹو مائی بیٹھک۔ مجھے یہ اعزاز دیا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام واحد صاحب، I'm really absolutely feeling honored to be in your Baitak, and it is a really pleasure for me to having you with me, and I myself is with you in this program, and امید ہے کہ آپ بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو آغاز ہوتا ہے، یقیناً میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں کن کن سوالات کا احاطہ کروں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے جس کی آپ ورلڈ چیئرمین ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن IHRC، اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ تو مجھے پتا چل گیا، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ ہیومن رائٹس ہیومینیٹیرین کازز ہیں۔ یہ کن کن محاذوں پر کہاں کہاں کام کر رہی ہے، اور اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ایک انٹر گورنمنٹل باڈی ہے which charter has been signed by the few countries. According to the intergovernmental status of any organization, it is a protocol, international protocol,
which we call it the Organizational IGO Protocol of the Vienna Convention 1964. उसके मुताबिक two or more than two states, if they sign or accredit any organization, that organization turns as an intergovernmental organization. So International Human Rights Commission is a state party charter organization. Or till now, we have 8 states acceded to our charter, and the many having a diplomatic relation, because ये कुछ parts होते हैं किसी भी protocol को sign करने के, तो there are more than 40 states, those who are on the first part, and the 8 states, those who has completed all the parts. International Human Rights Commission upheld the Universal Declaration of Human Rights. We are not politically biased with any government or with any state. We are emphasizing to collaborate with all international bodies over the situation of human rights, atrocities, genocides. Our experts give opinion on it, and we try to enforce with the international mechanism the implementation of all instruments which has been passed by the United Nations as a global organization. ठीक, डॉक्टर साहब, जाहिर बात है हमारे पास 1 घंटा है और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे इस्तिफादा हासिल कर सकूं, आपके इल्म से, नॉलेज से। हम स्ट्रेट टू जंपिंग इनटू कश्मीर साइड, जो कि हमारा मेन मुद्दा होता है जिस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप अहले दानिश हैं, अहले इल्म हैं, आप इंटरनेशनल सतह पर भी इंगेज रहते हैं और मुल्की सतह पर भी आप राब्ते में रहते हैं, सफारतकारों से भी और बाकी सारे से। सवाल ये है मेरा कि आप के नजदीक मसला जम्मू कश्मीर एक्चुअली है क्या? एक तो ये बताइएगा, बिकॉज मैं शायद किसी और अपने एक नुक्ता नजर या ऐनक से देखूं, लेकिन आपके नजदीक मेरे लिए ये जानना जरूरी है, मेरे सुनने वालों के लिए, कि आपके नजदीक मसला जम्मू कश्मीर एक्चुअली है क्या और इसको किस तरह से आगे मतलब ले जाया जा सकता है या किस तरह से दुनिया देख रही है? Basically, Jammu and Kashmir, it's an unfinished agenda of the international community. Unfinished agenda because the international community made some commitments and promises with the peoples of Kashmir 72 years ago, and that was the will of the Kashmiri peoples, a freedom. Freedom has turned down now a geographical and land dispute, which is wrong. मेरे नजदीक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो वादा था वो था कश्मीरी लोगों की जद्दोजहद के जवाब में कि उनको आज़ादी मैसर होगी, आज़ादी मैसर होगी। ये आप इंटरनेशनल कन्वेंट और कन्वेंशन जितने भी हैं वो आप उठा लें, आप रेजोल्यूशन उठा लें, उसमें एक्सेशन का कहीं पर जिक्र नहीं है। अब अगर पीपल ऑफ कश्मीर की एक्सेशन की अगर बात करें और अगर हम ये मान लें कि देयर वाज एन एक्सेशन विद द पाकिस्तान ऑन द टाइम ऑफ फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान Muhammad Ali Jinnah, or whether one accession of Maharaja has been signed with the Nehru, तो इन दोनों एक्सेशंस की उस वक्त वैल्यू नहीं रही। जिस वक्त ये दोनों नेशंस चली गई वहां पे यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर, और यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड कर दिया नाउ इट विल बी अ विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, and both the countries should avoid taking any step which will
damage the will of the people of Kashmir. अब जब आप कश्मीरी लोग, कश्मीरियों के, कश्मीरियत को अगर आप देखें तो कश्मीरियत एक कौम है, कश्मीर एक कौम है, वो ना तो हिंदुस्तानी है ना पाकिस्तानी है, वो एक कौम है। तो इस लिहाज से हमारा, मैं जब ये कहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये अनफिनिश एजेंडा है, रहेगा until and unless the people of Kashmir are not the rear party of the Kashmir, the rear honor of the Kashmir, they are not taking any kind of a decision in the atmosphere where the freedom prevails first. तो मेरे नजदीक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की ऑब्लिगेशन है, सो आई एम अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इट इज अवर ऑब्लिगेशन, और मैं हमेशा हर फोरम पर ये एम्फसाइज करता हूं कि कश्मीरियों को उनका पहला राइट जो है, जो कि दुनिया के हर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है, अ राइट ऑफ अ फ्रीडम, जब तक हम उनके राइट ऑफ फ्रीडम को उनके हाथ में नहीं देते, हम उनसे दूसरा और तीसरा कोई सवाल भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू में बहुत सारे बातें की, ऐसी बातें की जिसमें मेरे कम से कम 10 सवाल बन जाते हैं। अब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन साथ साथ आपने ये भी फरमाया कि ये उस वक्त तक इस खित्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई तज़वीराती तब्दीलियां नहीं कर सकते, कोई ऐसी तब्दीली जो जगराफियाई तौर पर इस खित्ते को मुतासर करे, वो असूली तौर पर नहीं कर सकते, यही बिल्कुल आपने फरमाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को उसने रियासत का जो तशख्खुस था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया और 2 यूनियन टेरिटरी बना दी 5 अगस्त 2019 को। फिर हम वापस आते हैं अपने घर की तरफ और हम इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, तो अभी वहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है, इलेक्शन हुए और वहां पर जो तब्दीलियां आई, स्टेट सब्जेक्ट को जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया या वो खत्म कर दिया। इसके अलावा अब असेंबली बनवाई गई एक लूली लंगड़ी सी, और फिर हमने देखा कि अगला स्टेप जो उठाया जा रहा है इसको अबूरी सूबा बनाया जा रहा है। बताइएगा, सवाल जो पैदा होता है इस सारे वादे को एक तरफ रखते हुए, आलमी ऑब्लिगेशन जिस तरह आपने फरमाया, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के इस खित्ते में इस रियासत के ऊपर जो इकदामात हैं, आप उस इकदाम को या उन इकदामात को जो भारत और पाकिस्तान इस खित्ते में उठा रहे हैं उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा ओपिनियन जो है वो 370 आर्टिकल जो अबॉलिश किया इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू द पार्लियामेंट, इट स्टैंड नेल एंड वाइट। और ऑन द अदर पार्ट, आई मीन द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, any changes whatever they will make, it will be stand nil and void according to the international क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग लॉ है फॉर एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर कोई नेशन या स्टेट उसको वायलेट करती है तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है, इन द चार्टर के उन कवानीन में जो कि किसी मुल्क को मेंबर बनाता है, उसमें क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि अगर चार्टर की कहीं पर भी कोई मुल्क खिलाफ वर्जी करता है तो he is liable to be no more member of the United Nations. तो मेरे नजदीक इंडिया और अगर पाकिस्तान कश्मीर की जुग्राफियाई हदूद में या इनके स्टेटस में
किसी किस्म की भी तब्दीली करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर both countries will be get out from the United Nations. क्योंकि 1948 1949 की जो रेजोल्यूशंस हैं ओवर कश्मीर, दैट आर दी बाइंडिंग रेजोल्यूशंस, और उन बाइंडिंग्स की वजह से दोनों ममालिक कश्मीर की जुग्राफियाई, इलाकाई, नजरियाती हदूद को ना तो तब्दील कर सकते हैं, ना उसके स्टेटस को तब्दील कर सकते हैं. द कश्मीर विल बी रिमेन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, और उसके डिसीजन इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना, उसका डिसीजन करना है सिटीजन्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, और उसको इंश्योर करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने. आई मीन अब देखें, उसको इंश्योर भी जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं करेगा, उसको इंश्योर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी. दिस इज व्हाट इज द बाइंडिंग सिचुएशन ओवर द कश्मीर. और अगर इसको कोई भी वायलेट करता है तो वो तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड सबको वायलेट करता है, और फिर वो उसके पास अनफॉर्चुनेटली चूंकि अब दुनिया टर्न डाउन हो गई है, वर्ल्ड हमारा टर्न डाउन हो गया है ओवर डिप्लोमेसी, ओवर द बिजनेस. हम मार्केट्स को सामने रखकर फैसले कर रहे हैं, और मार्केट्स को सामने रख के जब भी कोई कौमें या जब भी कोई अदारे फैसले करते हैं तो वो अदारे बहुत ज्यादा देर तक अपने पांव पर खड़े नहीं रहते. तो मेरा लास्ट टाइम भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब मैंने एड्रेस किया था 2018 में, तो मैंने ये बात वहां पर वाज़ेह तौर पर कही, इफ वी आर नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल्स ऑफ कश्मीर टू हैविंग द फ्रीडम एज वी प्रॉमिस्ड, एंड इफ वी आर नॉट गिविंग द फ्रीडम टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, if we are not considering the peoples of Sahara to having an own state, then it's mean that we are living in the period of a jungle. So let us to shut down this United Nation and let the people decide their fate. So जब people अपना fate decide करेंगे तो फिर इंडिया और पाकिस्तान को या जो भी ये डिस्प्यूट है उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि फिर उन लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो इंतहा से ज्यादा बढ़ जाएगी. कि जब लोग फैसला करना शुरू कर दें और कोई बाउंड्रीज ना रह जाएं तो फिर आजादी लेने वाले जो हैं वो आजादी ले लेते. सही है डॉक्टर साहब, वापस आते हैं. आपने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बात की और ज्यादातर आपकी एक्सपर्टी भी उस तरफ है, बताइएगा कि वहां पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो करारदादें जो हैं वो हमारी जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है या हक के खुद इरादियत है उसको महदूद करती हैं भारत और पाकिस्तान तक. उन करारदादों में रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को उनका अपना मुल्क बनाने, एक आज़ाद मुल्क बनाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या वाज़ेह तौर पर कोई रोड मैप वहां पर नहीं मिलता जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो. अब सवाल ये पैदा हुआ, अब सवाल यहाँ पे कलामी यहाँ पे आपकी करूं तो मैं आपको बड़े क्लियरली बता दूं, मैं आपको भिजवा भी दूंगा. उनमें एक करारदाद ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ ये कहती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कि इंडिया और पाकिस्तान का क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन स्टेट का फैसला, उसकी स्टेटस का फैसला पीपल ऑफ कश्मीर करेंगे, एंड इट इज बाइंडिंग. मैं जब कहता हूं कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, that is that the people of Kashmir have the right of a self-determination, the one. On the second, contrarily, second, they will decide whatever they want to do with their own future. तो जब people of Kashmir ने decide करना है
So whether they decide to annex them to the India or Pakistan or to be an independent state, it is their will and it is written clearly. अगर किसी को इसको डाउट है तो अपने जहन से ये डाउट निकाल दे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 1949 की है, जिसको लोग बहुत ज्यादा हवा में लहराते हैं दोनों अतराफ में कि ये हमारी जीत है, तो वो तो बेसिकली वो तो जीत थी कश्मीर के लोगों की कि उनके दो चीजें मानी गई। द वन, दे आर अ सेपरेट नेशन। टू, दे हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। थ्री, दे विल डिसाइड देयर फेट। जब इंडिया और पाकिस्तान कहता है कि वी आर द पार्टी टू नेगोशिएट, तो दैट इज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विल। दे आर नॉट द पार्टी। द मेन पार्टी इज द पीपल ऑफ कश्मीर। सही। डॉक्टर साहब, साथ ये बताइएगा, हमारे दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान से, कराक्रम नेशनल मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथी, वो फरमा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रही इस रियासत जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, क्यों अभी तक उसने डिसाइसिव एक्शन क्यों नहीं उठाए? क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ईस्ट तैमूर के लोगों ने आजादी ली लड़कर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करवा के। बोस्निया की आजादी का अमल जो है वो शुरू हुआ उनके जेनोसाइड से लेकर उनकी फाइट ऑफ फ्रीडम तक, एंड देन इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन की। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक क्लियर स्टैंड है और आई थिंक द पीपल ऑफ कश्मीर शुड बी प्राउड ऑन इट कि दैट जब वो फाइट कर रहे थे फॉर द फ्रीडम, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरवीन किया। असल मसला जो है कि पीपल ऑफ कश्मीर और कश्मीर डायस्पोरा जो है वो दुनिया के हर मुल्क में बैठा है, और गालिबन पाकिस्तान की आबादी को अगर मैं मद्देनजर रखूं और पाकिस्तान के लोगों को मैं मद्देनजर रखूं, तो जितने रिचेस्ट पीपल ऑफ कश्मीर हैं आउटसाइड और इनसाइड ऑफ पाकिस्तान और इनटू द इंडियन ऑक्युपाइड साइड और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड साइड, तो वो अपनी विल को इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज नहीं कर सके। इसमें देखें थोड़ा सा फॉल्ट जो है वो कश्मीरी लोगों का अपना भी है। बोस्निया के लोग जहां पर थे वो बाहर सड़कों पर निकल आए, जहां जहां थे। ईस्ट तैमूर के लोग जहां जहां थे वो बाहर निकल आए। साउथ सुडान के लोग जहां जहां थे वो बाहर निकल आए। मसला ये है, मैं अमूमन जब भी कश्मीर में मैं कश्मीरियों से बात कर रहा होता हूं तो मैं वो उनको एक बात बड़े क्लियर अंदाज में कहता हूं, दिस इज योर वॉर, यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू स्टैंड फॉर इट, नन ऑफ द पार्टी अदर देन यू कैन गेट व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। डॉक्टर साहब, सही बात फरमाया आपने। ये तो दुरुस्त है कि हम कश्मीरियों की अपनी जो समत है वो भी, उसमें भी तजाद हैं, उसमें भी बेशुमार रोले कह सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के रुझानात हैं। सो डज एवरी सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड, उसके भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हमारा जो मसला है वो यकीनी तौर पर एक यूनिक किस्म का है और उसके अंदर जो खराबियां हैं, जिस तरह से यूसुफ अली साहब फ्रॉम गिलगित, उन्होंने फरमाया कि जब तक लोग बेदार होकर मैदान अमल में नहीं आते तब तक यूनाइटेड नेशन भी खामोश ही रहेगा, और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन का काम इतना था कि उन्होंने आपका बुनियादी जो आपका बुनियादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है उसको तस्लीम किया। देखें, यूनाइटेड नेशन हर चीज को फौरन तस्लीम नहीं कर लेती। वो एक स्टेट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके आप स्टेटस को मद्देनजर रखें ना। आई मीन, जब आप लोकल गवर्नमेंट से अपनी मुतालबा नहीं मनवा सकते तो आप कह रहे हैं कि एक इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से मुतालबा मनवा लेंगे। आई मीन, एक लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आप जानते हैं ना, काउंसिलर से शुरू होता है, आप उससे तो मुतालबा मनवा नहीं सकते। तो
I mean, it is a big achievement of the people of Kashmir के interstate organization ने आपके उस बुनियादी मुतालबे को तस्लीम किया हुआ है. Now it is your diplomacy. Now it's your effort. अगर आपने गन को देखें, अगर दो ही रास्ते होते हैं किसी भी कौम के लिए. पहला रास्ता होता है डिप्लोमेसी, प्रोटेस्ट, स्ट्रगल. दूसरा रास्ता होता है डिप्लोमेसी का, और तीसरा रास्ता होता है वायलेंस. बेलारूस की आप मिसाल आपके सामने है. एक तरफ वायलेंस है और एक तरफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, और वहां पर कोई नया मुल्क नहीं बनाने की जंग हो रही. वहां पर जंग हो रही है फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द नाम ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी. और क्या यूरोपियन यूनियन ने उनकी इस बात को इंश्योर कर दिया? ऐसा नहीं होता. जो मिलिट्री इंटरवेंशन होती है ये लास्ट रिजॉर्ट होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का किसी भी इशू के ऊपर, और मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हो सकती बाद मामलात में. मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कश्मीरी जो है वो 4 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे. 130 करोड़ का मुल्क है इंडिया और 130 करोड़ की मार्केट है. क्यों नहीं ये लोग समझते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को 135 करोड़ लोगों की खातर 130 करोड़ की आबादी को जो है वो मिलिट्री इंटरवेंशन में झोंकना होगा? हाउ दे विल डू इट दैट? देन द अदर हैंड द डिप्लोमेसी. A diplomacy on the account of the people of Kashmir, by the people of Kashmir and to the people of Kashmir. उसमें जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे, देखें वन पॉइंट एजेंडा होता है ना. कश्मीर तो वन पॉइंट एजेंडा है ना. वट एवर द इंटरेस्ट, वट एवर द डिफरेंसेस, वट एवर द थिंग. तो जब तक हम मोबिलाइज नहीं करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के बाद ही आप किसी जो है वो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स को देख सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तल हकीकतें बताई हैं. वो तल हकीकतें जो हैं उसका जो है बिल्कुल हमें तस्लीम करना चाहिए. जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में फरमाया कि हम अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मनवा सके तो हम इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को कैसे मनवाएंगे. ये सवाल जो है वो बड़ा इसका गहरा ताल्लुक है हमारे रियासत के इस हिस्से में, बिलखुसूस जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है. और मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट फुली इक्विप या इंडिपेंडेंट नहीं है, या इसके अपने जो इसके घंटियां हैं वो कहीं और से बजती हैं. बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं. हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अजीब और गरीब किस्म का निज़ाम वहां पर नाफज है, वो भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये तारिफ अब्बास साहब की बात दोबारा भी दुरुस्त हो जाती है कि लोकल गवर्नमेंट और कंट्रोल जो है वो दोनों खित्तों के ऊपर जो ममालिक हैं उन्हीं का है, और वही जो है उसका जो है चलाते हैं निजाम जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. यूनाइटेड नेशन जो है वो इसके ऊपर एक मसालियाना किरदार तो अदा कर सकती है. क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मैंने लोकल गवर्नमेंट की मिसाल जो दी थी वो इस तनाजुर में नहीं दी. मैंने लोकल गवर्नमेंट की मिसाल इस तनाजुर में दी थी कि जब अ ग्रुप ऑफ अ पीपल जो कि किसी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर रहता है, तो जब उसको फॉर एग्जांपल मैं एक आम फहम एग्जांपल दे देता हूं कि अगर उसको कोई नाली बनवानी है तो वो मुजाहरा करते हैं, काउंसलर के घर पर जाते हैं, काउंसलर को एंगेज करते हैं, दस्तखत करवाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, फिर जाके कहीं काउंसलर कहता है अच्छा चलो जाके मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बात करूंगा. वो फिर लोकल असेंबली में जाता है, वहां पर 100 तरह के उसके साथ होते हैं, लेकिन अगर पीछे से लोगों का प्रेशर हट जाए तो वो असेंबली में बिल भी नहीं लेके जाता. तो बात ये है कि ये मैंने आपको इस तनाज़र में मिसाल दी जद्दोजहद.
अब आप एक आर्बिट्रेटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर को कह रहे हैं कि वो उसने चूंकि वादा किया हुआ है तो वो पूरा करे। आर्बिट्रेटर के पास जो है वो देखिए 196 कंट्रीज वो हैं, 196 कंट्रीज हैं, दे आर द स्टेट मेंबर्स। India and Pakistan is one of the state member of that arbitrator. तो फिर कश्मीर का इशू, Kashmiris are not the state party over there, ना। It is an issue कि इनके लोगों को, कश्मीर के लोगों को हक खुदरादियत और इनका जोग्राफियाई स्टेटस को कायम और दायम रखना है। तो उसके लिए मोबिलाइजेशन होती है ना। मैंने आपको कहा कि मैंने आपको बेलारूस की बड़ी यूनिक मिसाल दी है इस वक्त रिसेंटली। वहां पर दो हैं, लोग कहते हैं जमहूरियत बहाल करो, लुकासा कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा यूरोप, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एवरीवन इज सेइंग कि पीपल आर राइट, but do the President Lukasa is leaving the territory? No. तो क्या वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन हो? वहां पे क्या मिलिट्री इंटरवेंशन हो? नहीं होगी, इसलिए कि वहां की आबादी, यूरोप की आबादी में अगर बेलारूस का आप हिस्सा देखें तो बेलारूस का हिस्सा जो है वो एक हैवी हिस्सा है यूरोप की टेरिटरी में। तो मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी क्योंकि वो एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो जाएगी। मैंने आपको अर्ज जो की कि आर्बिट्रेटर बिल्कुल है यूनाइटेड नेशन, लेकिन आर्बिट्रेटर कहता है, जब आर्बिट्रेटर मसला वहां पर उठता है, फॉर एग्जांपल मैंने यूएन में मसला उठाया, मेरे सेक्रेटरी जनरल ने वहां पर यूएन में कई मरतबा मुख्तलिफ कमिटीज में मसला उठाया, वहां पे दो पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, कश्मीरी कोई नहीं होता, कोई कश्मीरी ग्रुप नहीं है, कोई कश्मीरी जो है वो नेगोशिएटर नहीं है, कोई कश्मीरी डिप्लोमेट नहीं है, कोई डिप्लोमेसी करने वाला नहीं है। यानी कि देखिए, आप बाहर चीखते चराते रहेंगे, जहां पर आर्बिट्रेशन होनी है वहां पर तो आपकी पार्टी मौजूद होनी चाहिए ना। तो दो पार्टियां आ जाती हैं, एक आ जाता है इंडिया, एक आ जाता है कश्मीर। वो कहते हैं जी मेरा है, ये कहते हैं मेरा है। अच्छा जी, वो आपका दोनों है तो बैठ के नेगोशिएट करो, डायलॉग करो। तो वो ये दोनों मुल्क इस बात में कामयाब हो जाते हैं, इट इज एन टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एंड आई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम सेइंग कि कश्मीर इज नॉट अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, it is a matter of a right of self-determination, the first party of the people of Kashmir. और जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे, और देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो ये बात मान ली, अब हमने इसको मूव फॉरवर्ड कैसे करना है? लेट मी टेल यू वन थिंग, India and Pakistan are successfully molding this issue as a territorial issue in violation of that resolution which has been passed by the United Nations Security Council. That is a violation. इसलिए अगर ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट पूरी दुनिया के सामने नहीं लेके जाएंगे, कश्मीरी एक दहशतगर्द नहीं होगा, तो इंडिया 370 आर्टिकल को एब्रोगेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित को चेंज नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान भी इंडिया को फॉलो करता है तो फिर पाकिस्तान का जो क्लेम है दैट विल बी स्टैंड नोवेयर, नोवेयर। डॉक्टर साहब, आपकी बातें यकीनी तौर पर बेशुमार दोस्तों को समझ आ रही होंगी कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अब सवाल जो है वो फिर वापस एक जगह पर आके रुक जाता है,
اور وہ میرا سوال جو ہے بلکہ اجمل راجہ صاحب ان کی بات سے کہ کشمیری کس طرح سے یونائٹڈ نیشن یا دیگر بین الاقوامی فورمز پہ اپنی ایکسس کر سکتے ہیں, کس طرح سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا اس کے سائیڈ لائن پر سوال بنتا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو کرنٹلی آزاد جموں کشمیر کے ہیں سردار مسعود خان, وہ بھی ایک انٹرنیشنل سفارتکار رہے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں انہیں, تو وہ بھی ایک سفارتکار کے طور پر موجود ہیں. کیا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کشمیر کی قیادت پر. میں بڑا احترام کرتا ہوں اپنے دوست بھائی سردار مسعود خان کا, ونڈرفل پرسن, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی کچھ اپنی آبلیگیشنز ہیں, اور ان آبلیگیشنز کے تحت شاید وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا جو کہ اس کو بحیثیت کشمیری کرنا چاہیے. ون کین ڈفر مائی اوپینین, مجھے اس پر وہ نہیں ہے, لیکن میری اپنی رائے ہے. ہی از اے ونڈرفل ڈپلومیٹ, لیکن شاید کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جس چیئر پر میں بیٹھا ہوں اس چیئر کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ جتنی بھی لمیٹیشن ہے, لیکن میری جو فریڈم آف اسپیچ ہے that is empowering me to get out of the boundaries of the chair. لیکن بہت سارے لیڈرز کے ساتھ, بہت ساری پرسنالٹیز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. پہلا سوال جو تھا راجہ صاحب کا, اجمل صاحب کا غالباً, کہ جی ہم یونائٹڈ نیشن میں کیسے ایکسس کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن ایک انٹرنیشنل فورم ہے. کشمیری وہاں پہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن فورم دیتا ہے تمام قومیتوں کو, تمام آرگنائزیشنز کو, ڈسپائٹ آف دی انٹر گورنمنٹل اینڈ اسٹیٹ پارٹیز, وہ وہاں پہ اپنی وائس بلند کر سکتے ہیں سول سوسائٹی میں, اور سول سوسائٹی کی آواز جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل تک پہنچتی ہے, اور وہ وہاں پر اپنی ڈپلومیسی کر سکتے ہیں. وہ ان کو وارن کر سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی بچہ پارٹی ہے کہ وہ اپنے دوست انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ کر کہیں گے ہاں جی کشمیری آپ میرے دوست ہیں. جغرافیکلی تو انڈیا اور پاکستان دونوں یونیک لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں. درست ہے, صحیح ہے. اس لیے ایڈوکیسی از اے ویری نیسیسری, اور ایڈوکیسی آپ ایک پوائنٹ پر لے ہیں نا, لیکن ڈفرینسز ہوتے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہوں گے, آپ کے برادری کے ڈفرینسز بھی ہوں گے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس کے بھی ہوں گے, لیکن ایک ڈفرینس تو نہیں ہے نا آپ میں کہ کشمیر از یورز اینڈ یو آر کشمیر. بالکل درست فرمایا آپ نے. تو ایک اور سجیشن آتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہاؤ اپلیکیبل از دس, کہ یہ عادل شیخ صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں وادی نیلم سے, اپنے وادی جیلم سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جموں کشمیر کی, آزاد کشمیر کی اسمبلی میں پورے جموں کشمیر کے لیے اگر نشستیں ہو جائیں اور دونوں اطراف کے عوام کی نمائندگی ہو, تو کیا ہم اقوام متحدہ یا دیگر عالمی فورمز پہ جا کے اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں جہاں تک مجھے پتا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو ہے, جو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے, اس کی گورنمنٹ یہ کام کر سکتی موجودہ. اب اگر وہ کرتی نہیں ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر وہ کرتی نہیں ہے تو میرا اس کے پاس میرا کوئی حل نہیں ہے. اب پاکستان نے کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ کشمیر کمیٹی کچھ نہ کرے تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں اگر آپ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں,
ان میں اور لوگ ڈالتے جائیں گے اور لوگ ڈالتے جائیں گے, اور جتنے مرضی ڈال دیں, جو پہلے ہیں انہوں نے کیا کر لیا جو آنے والے کریں گے. سو ڈاکٹر صاحب آپ دراصل یہ فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے انڈر UNCIP وہ بہت کچھ کر سکتی ہے جو اس کے کرنے کے کام ہیں, مگر وہ نہیں کر رہی, اور اس کی وجہ شاید اس خطے کے اوپر جو ممالک ہیں ان کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کنٹرول یا انتظام ہو سکتا ہے, اس وجہ سے بھی ہے, دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشن جو ہے, اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے, وہ ہمیں بالکل بے بس نہیں کر رہا, بلکہ ہمیں بقدرے جو ہے وہ خود اختیاری دے رہا ہے, ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ میں صحیح سمجھاؤں؟ یہ آپ 100% درست سمجھے ہیں. میرا جو رسپونڈ تھا کہ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جناب عالمی برادری سوئی ہوئی ہے. عالمی برادری دیکھیں, عالمی برادری کا اپنے اور بہت سارے مسئلے ہیں, صرف ایک مسئلہ نہیں ہوتا. عالمی برادری سوئی ہوئی نہیں ہوتی, لیکن جتنا آپ موبلائز کرتے جائیں گے عالمی برادری اس طرف پھر متحرک ہوتی چلی جاتی. گزشتہ 70 سالوں میں آپ نے عالمی برادری کو متحرک نہیں کیا. دیکھیں نا, وہ تھوڑا سا بھی ایشو ہوتا ہے, فلسطین بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور اسرائیل بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. عالمی برادری ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ پھر نہ لڑ پڑے, پھر ایک نئی وار ہو جائے گی, چلو ادھر کودو. تو آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, I'm sorry to say this word, in Indian occupied Kashmir, my sisters are raped, my mothers are killed, my kids are butchered, my elders are giving their life, and my young generation is starving for freedom. They are facing all inhuman treatment which history cannot write down like an Holocaust. But you know what I call it, the situation of the people of Kashmir? It is Kashmiri Holocaust. Let it to be make this trend everywhere, the people of Kashmir. It's Kashmiri Holocaust. The world will understand your demand. Secondly, the people of Pakistan administrated Kashmir, they are responsible and equally responsible of this brutality is happening on Indian occupied Kashmir. کیونکہ یہ تناسانی میں بنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے خون کا قطرہ نشاور کر رہا ہے تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ, وہ لوگ ہیں یا تو وہ جیلوں میں ہیں اور باہر آتے ہیں تو پلیٹلیٹ گنز کا سامنا کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے بچے پراپر ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے, لیکن پھر بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. اب فرق آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات 100% درست ہے کہ دو مختلف انتہائیں ہیں اور جن کا کوئی میچ نہیں ہو رہا. یقینی طور پر پروگرام کا آخری حصہ ہے, اس میں جو ہے ساتھ ساتھ میں نے کمنٹ بھی شروع کر دیے شامل کرنے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے کمنٹ سوالات کو بھی جگہ دوں, اور یہ یقینی طور پر ہے آسانی ہوتی ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم ان کو بھی انگیج کر لیتے ہیں ڈائریکٹلی, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس سے سوالات کو جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے سناریو وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے اپنی جو علاقائی سطح پر, انتظامی سطح پر اور عالمی سطح پر جو خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لغزشیں ہیں,
उनकी निशानदेही आपने फरमाई और बजा तौर पर आपने वो दुरुस्त पॉइंट आउट किया। सवाल ये है कि अब वे फॉरवर्ड क्या बनता है? एक तो ये बताइएगा, सफारतकारी की बुनियाद अगर देखें तो हम यहाँ बरतानिया में, मैं जहाँ पर रहता हूँ, हम यहाँ पर हिंदुस्तान के खिलाफ अगर एहतजाज करते हैं तो हमारे हाथों में पाकिस्तानी परचम होते हैं, और पाकिस्तानी परचम हम जब लहराते लंदन या न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाते हैं तो दुनिया को उससे कोई दिलचस्पी नहीं पैदा होती। वो ये ख्याल करते हैं जैसे पाकिस्तान किसी क्रिकेट के मैदान में जीता है तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको ना तो हमारे नारों की समझ आती है, ना ही उनको हमारे स्लोगन्स पता लगते हैं, और ना ही उन्हें हमारी सफारतकारी का पता चलता है। बताइएगा कि क्या मसला कश्मीर के ऊपर जो सफारतकारी होती है, एक सफारतकारी तो थिंक टैंक करते हैं, अदारे करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं, मुलाकातों में, मुज़ाकरात में, चैनल 2 डिप्लोमेसी जो भी होती है। एक होती है अवामी सतह पर डिप्लोमेसी, जिसका असर जो है वो आलमी सतह पर भी पड़ता है और दुनिया को बेदार करने के लिए अपना पैगाम भी पहुंचता है। बताइएगा कि क्या हम कश्मीरी, और बिलखुसूस बरतानवी या अमेरिकी कश्मीरी या कैनेडियन या यूरोपियन कश्मीरी, क्या ये दुरुस्त कर रहे हैं कि परचम उठा के आप पड़ोसियों के उठा के आप दुनिया की तरफ जाते हैं और दुनिया ये कहती है कि आज विराट जो है वो उसकी टीम क्रिकेट जीत गई है, या इमरान खान की या किसी और की टीम जो है वो क्रिकेट जीत गई है? बताइए क्या हम दुरुस्त कर रहे हैं या हमारी तरजीहात या बुनियाद ही गलत है? बेसिकली देखें वाहिद भाई, कश्मीर एक स्टेट थी, एक स्टेट है। कश्मीरी एक कौम थी, एक कौम है। कश्मीर की एक अपनी जुबान थी, एक जुबान है। कश्मीर का अपना एक कल्चर था, कश्मीर का एक कल्चर है, तो कश्मीर का एक झंडा भी तो होगा ना। मुझे उन लोगों पर कोई एतराज नहीं है कि वो पाकिस्तान का झंडा उठाएं या हिंदुस्तान का झंडा उठाएं, ये हर बंदे की अपनी चॉइस। लेकिन कश्मीरी को कश्मीर का झंडा उठाना है, इफ दे आर कश्मीरी। और जब तक आप कश्मीर का झंडा नहीं उठाएं, उस वक्त तक आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जो कम्प्लेक्सिटी है इस मुद्दे की, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब तक हम अपना परचम खुद नहीं थामेंगे, अपने घोड़े की लगाम खुद नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक दुनिया हमारी बात को नहीं सुनेगी। लेकिन ये महज एक दो लाइन के अल्फाज तो नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। यहाँ पर हमारे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके पास भी पड़ोस का परचम होता है। सदर साहब आते हैं, वो भी एडवोकेसी पड़ोस की करते हैं, और एक तरफ से कहते हैं दूसरी तरफ से कुछ और कहते हैं। तो ये कम्प्लेक्सिटी, इसी तरह भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो यहाँ पर आती रही है। आप तो उस तरह से उनका नहीं है सिलसिला, लेकिन वो भी यहाँ पर हिंदुस्तान की एडवोकेसी करती रही है। यानी कि दोनों अतराफ की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके दरमियान जो एडवोकेसी करती है या जो आवाज होती है या सिलसिला चंबानी चलता है, वो सिर्फ ये होता है। फॉर एग्जांपल, भारत की तरफ से कोई आता है तो उनके नजदीक मसला कश्मीर जरूर मौजूद है, लेकिन वो मौजूद ये है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कब भारत को वापस मिलता है, तो उनके नजदीक मसला कश्मीर ये है। इसी तरह जो पाकिस्तानी अतराफ से आते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ पर आती हैं, जलसे करती हैं, उनके नजदीक जो मसला कश्मीर है वो ये है कि भारत ने कश्मीर को एक हिस्से को ऑक्युपाइड किया हुआ है, वो पाकिस्तान को वापस मिल जाना चाहिए। तो उनके नजदीक मसला कश्मीर का हल ये हो गया। अब बताइए कि इस दरमियान में हम जो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम हैं वो तो एक सैंडविच बने हुए हैं, तो इस सैंडविच को किस तरह से हम निजात हासिल कर सकते हैं? मेरा यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक सवाल है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जो भी कश्मीरी, वो यूरोप में, अमेरिका में, फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, एशिया में, अफ्रीका में, कहीं पर भी बैठा हुआ मेरे लफ्ज को सुन रहा है,
میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کشمیری ہیں؟ کیا آپ کو اپنی مٹی سے پیار ہے؟ تو آپ ان دو ملکوں کی مارکیٹ کے درمیان بائیبل تھنگ کیوں بنے ہوئے؟ اور اگر آپ بائیبل تھنگ نہیں ہے اور آپ کسی مارکیٹ کی کموڈیٹی نہیں ہے تو اپنی انڈیویجولیٹی کو بھی تو قائم رکھیں. It is up to you. It's not up to the international community, and it's not even in the interest of India and Pakistan to do so. وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. اور پھر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے تمام لیڈروں کا بہت احترام کرتا ہوں ڈسپائٹ اوپینینس، لیکن میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کی. مزے وہ بھی لے رہے ہیں اور مزے وہ بھی لے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی. اگر مزہ کوئی نہیں لے رہا نا تو وہ کامن پرسن آف کشمیر ہے. اب کامن پرسن آف دی کشمیر کو سوچنا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. وہاں کشمیری اپنا فیصلہ کر سکتا ہے نا، اس کو انڈیا اور پاکستان کی ضرورت تو نہیں. تو یہ بات باقی بھی سوچیں نا. جب وہ یہ بات سوچیں گے تو الٹیمیٹلی the pressure goes to the international community. And international community will realize کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ دونوں ملک اس کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بنا چکے ہیں. آپ کشمیری اس کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہ بنائیں، آپ کشمیری اس کو ڈسپیوٹ آف فریڈم بنائیں. The matter will resolve. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک آدھ سوال ہے میرے نزدیک، اور سوال یہ ہے کہ اب آپ نے وے فارورڈ بھی بتا دیا، اور وے فارورڈ وہی ہے کہ کشمیری عوام کو اپنے حق کے سرداری کے لیے خود جو ہے اپنی آواز بننا ہے اور خود ہی اپنا پرچم تھام کر دنیا کی طرف دیکھنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاں ایک نیریٹو جو ڈیولپ کیا گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان آپ کا وکیل ہے، عالمی سطح پر آپ کا وکیل ہے، آپ کے حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے. لیکن اگر ہم ریالٹی کو دیکھیں تو پاکستان وکیل نہیں بن سکتا. وہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ پاکستان اس تنازع کا خود بھی ایک فریق ہے، اور فریق کبھی وکیل نہیں بن سکتے. کیا کہتے ہیں کہ یہ نیریٹو درست طریقے سے پھیلایا گیا؟ میرے خیال سے یہاں پہ دو فریق ہیں، ایک کشمیری اور ایک انڈیا اور پاکستان. اس میٹر کے دو فریق ہیں. ایک طرف انڈیا، اسٹیٹ آف انڈیا اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان، اینڈ ادر سائڈ از ان کشمیر پیپلز اینڈ کشمیر. تو آپ کے نزدیک تین نہیں بلکہ دو ہی فریق ہیں، بھارت اور پاکستان ایک فریق، کیونکہ وہ آپ کا استدلال یہ ہوگا کہ بھارت اور پاکستان اس کے اوپر اپنا حصہ جتلاتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، تو وہ ایک فریق ہو گیا. جبکہ دوسری طرف فریق جو بنتا ہے وہ کشمیری عوام، ریاست جموں کشمیر کی عوام. یہی بالکل یہی ایک نیریٹو ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسی نیریٹو کو 1949 میں ایکسپٹ کیا. تو یہ بڑی پتے کی آپ نے بات بتائی ہمیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اصل فریق آپ کو اپنا وکیل خود کرنا ہے. صحیح. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا وکیل کون ہوگا، یا آپ اپنی وکالت خود کر لیں. ویسے تو جن بھی ملکوں نے آزادی حاصل کی ہے وہ اپنے وکیل خود ہی ہوا کرتے تھے، ان کا وکیل کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. درست بات ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں بتائیے گا کہ اگر ریاست جموں کشمیر کی عوام، اس کی اکثریت
पूरी की पूरी एक आजाद रियासत के तौर पर अपने मुल्क को देखना चाहती है, तो बहैसियत एक आलमी सफारतकार के आप क्या समझते हैं कि ये वायबिलिटी मौजूद है? पहली तो ये बताइए कि क्या ये मुमकिना तौर पर दिखाई देती है आपको दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क की हैसियत से? क्या भारत और पाकिस्तान जो है एक आजाद मुल्क, उनके दरमियान एक दोस्ती का पुल बन सकता है? और अगर वो बन सकता है तो इसके जनूबी एशिया बिलखुसूस वस्ती एशिया और फिर आलमी दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, बताइएगा इस हवाले से। बेसिकली मेरे अपने जाती नुक्ते नजर में कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एक ब्रिज के तौर पर भी काम कर सकती है बिटवीन द टू कंट्रीज, नॉट बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द थ्री कंट्रीज। हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम दो मुल्कों का जिक्र करते हैं, तीसरे का नहीं करते। चाइना, ओवर द कश्मीर, three countries, state parties are a one party. India, Pakistan and China. ये एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन जब बात हम करेंगे तो फिर दो पार्टीज आ जाएंगी। ये तीन मुल्क एक कैटेगरी में और कश्मीरी एक कैटेगरी में, दो पार्टीज। मेरे ख्याल में इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन Kashmir can play a vital role as a state, as a bridge maker for the peace. अब मैं फिर वही ये कहता हूं कि ये थोड़ा सा तवील सफर है। डिप्लोमेसी हमेशा आसान सफर नहीं हुआ करता है, ये तवील सफर होता है। वायलेंस शॉर्टकट है, उससे आजादियां अचीव भी हो जाती है, वायलेंस जल्दी अचीव हो जाती है। लेकिन डिप्लोमेसी जो है ये थोड़ा सा तवील सफर होता है, ये इतना आसान सफर नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि 72 साल से 72 ईयर से कश्मीरी इस डिप्लोमेसी, नाकाम डिप्लोमेसी के सम्राट को समेट रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं। अब काफी हो गया। अब मेरा ख्याल है आलमी बरादरी को भी ये वेकअप हो जाना चाहिए, कश्मीरियों को खुद भी वेकअप हो जाना चाहिए, ये सोचकर के हमारा कोई वकील नहीं है। और साथ साथ जो है वो रीजनल पावर्स को भी वेकअप हो जाना चाहिए कि आजादी को बजोर शमशीर बहुत ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के लिए मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन मैं आज यकीन मानिए कि इतनी दिलचस्प और इतनी मालूमाती गुफ्तगू आपने फरमाई। और मेरे कमेंट्स में आप देख सकते हैं बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए, मुख्तलिफ वेब पेजेस पर लोग देख रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ जो पेजेस हैं वहां पर भी लोगों के बेशुमार कमेंट्स में शामिल नहीं कर सका। हरफ आखिर के तौर पर आप कश्मीरी आवाम को, बिलखुसूस इंडियन ऑक्युपाइड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में जो महव जदोजहद हैं हमारे हम वतन भाई, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको किस तरह से सम वर्ड ऑफ हीलिंग फ्रॉम योरसेल्फ डॉक्टर साहब। मैं अपने कश्मीरी भाइयों, दोस्तों, माओं, बेटियों को बड़ा सिंपल मैसेज दूंगा। मैं बहैसियत डॉक्टर मोहम्मद शाहिद अली खान आप लोगों के साथ खड़ा हूं, आप लोगों की आवाज हर जगह पर पहुंचाऊंगा, आप पर होने वाले हर जुल्म पर आवाज उठाऊंगा। और बहैसियत चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके आजादी के हक के लिए दुनिया के हर फॉर्म पर जद्दोजहद करूं। बेशक कश्मीरी साथ खड़े हों या ना खड़े हों, लेकिन एक असूली मौक़िफ़ होता है और उस असूली मौक़िफ़ पर पहरा दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।
Dr. Muhammad Shahid Amin Khan, His Excellency, absolutely great to talk to you. It's my pleasure. मुझे आज़ाद दिया, आपने मुझसे बात की और हमारे आवाम तक का हमारा पैगाम भी पहुंचाया। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ डॉक्टर साहब कि आपने मुझे वक्त भी दिया। दोस्तों, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जो है आपने सुनी, यकीनी तौर पर जो है हमारे लिए ये इस्तिफादे का बायस भी बनेगी। स्पेशली भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पैगाम भी उनका पहुंच गया होगा। और इसके अलावा जो वो काम कर रहे हैं आलमी सतह पर, वो भी काविशें जो हैं दुनिया के सामने हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के सवाल पर, उनकी आज़ादी के सवाल पर, उनके हक़ खुद अरादियत के सवाल पर डॉक्टर साहब का एक क्लियर, वाज़िया और तस्लीम शुदा तारीखी तौर पर मुस्तनद मौक़िफ़ जो है आपको सुनने को मिला। यकीनी तौर पर ये जो मौक़िफ़ है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी सवाल के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आलमी सतह पर जो इसके साथ वाबस्तगी होती है, आलमी सतह पर जो लोग इसके पेच और खम को जानते हैं, वो इस सवाल के तनाज़र को भी समझते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक पढ़ी लिखी गुफ्तगू के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, तो ये यकीनी तौर पर आपके लिए भी मालूमात का बायस बना होगा। मैं आप सबका मशकूर हूँ। माजरत चाहूंगा जिन दोस्तों के कमेंट्स जो है मैं शामिल नहीं कर सका आज की इस बैठक में। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को जरूर जो है दोबारा लेंगे और उनसे बहुत सारी बातें जो रहती हैं, सवालात जो रहते हैं, वो उनसे करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।